So in brief revision, so yesterday reaction was Cl2 plus anhydrous AlCl3. So this is forming AlCl4 minus and AlCl4 minus and Cl प्लस. बाद में फिर से Cl माइनस निकल करके H प्लस से बॉन्ड बना करके is forming HCl. You can use Cl2 plus FeCl3. You can use Cl2 plus Fe only. You can Br2. You can use Br2 and FeBr3. तो तीनों का प्रोडक्ट इज सेम क्लोरोबेंजीन and the last one is having bromobenzene. And then after reaction with N2Cl, what is N2Cl? Benzene diazonium salt. Benzene diazonium salt per first reaction HCl in the presence of Cu2Cl2 chlorobenzene, and name of the reaction is Sandmeyer. HBr in the presence of Cu2Br2 is nothing but Br. Again HCl and copper powder. So this reaction is called as Gutterman reaction. Same reaction. This is N2Cl. Now on a reaction with HBr and copper powder. Again Gutterman reaction. So this is Br on a reaction with Ki. Iodine, iodobenzene is formed, and reaction with HbF4 is fluorobenzene. So this is the methods of preparations of aryl halide. Methods of preparations of aryl halide. Methods of preparations of aryl halide. Okay. And this one is following aromatic electrophilic substitution reaction. Aromatic electrophilic substitution reaction. And all are these nothing but ARSN. Aromatic nucleophilic substitution reaction. नीचे वाला स्पेशली एरोमेटिक है इसलिए AR. Aromatic nucleophilic substitution reaction. Aromatic nucleophilic substitution reaction. Fast as a briefing note करो.
Chalo, now the next one. Shall I proceed forward? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now लिखो केमिकल रिएक्शंस। तो कल मैंने देखा था रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो कल ड्रॉ करके हमने देखा था। एंड दिस वन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता था। मैं बताता हूँ, मैं लिखवा दूंगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। Why this one is ortho and para directing group? लिखो। मैंने ऐसा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। दिस इज ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा एंड पैरा। लिखो ड्यूरिंग रेजोनेंस ड्यूरिंग रेजोनेंस ड्यूरिंग रेजोनेंस negative charge is coming during resonance. Negative charge is coming on negative charge is coming on negative charge is coming on ortho and para position. Ortho and para position. Ortho and para position. Ortho and para position. And electrophile and electrophile electrophile will always attack will always attack on will always attack on will always attack on ortho and para position. Ortho and para position. ठीक, उसके बाद लिख लो that's why fluorine chlorine bromine iodine FClBrI. That's why FClBrI are called as ortho and para directing group. ओके, किसी को प्रॉब्लम? तो जब कल हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, whenever any plus m Cl is belonging to positive mesomeric effect because it is increasing electron cloud density on benzene ring. The plus group is attached to negative charge is coming on ortho and para position. That's why electrophile is having positive charge will attack on negative charge of ortho and
para position. Is there any problem till now? Is there any problem till now? Is there any problem till now? Bolo. Is there any problem till now? Is there any problem till now? 11th class and 12th class, 11th class का पूरा 11th क्लास का पूरा तुम्हारा जो भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स वगैरह था वहां पे थोड़ा सा हुआ था, यहाँ पर नाउ इन ग्रेट एक्सटेंट कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखे थे 7-8, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली विल अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इज जनरेटिंग ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, दैट्स व्हाई it is ortho and para directing group. So next heading लिखो, next heading लिखो, लिखो halogenation of first one, halogenation of aryl halide, aryl halide, aryl halide. Okay, what is halogenation? Means halogen group you are adding. Suppose already Cl is there, अभी हमने बताया Cl is belonging to प्लस M ग्रुप। प्लस M ग्रुप का मीनिंग क्या था कि whenever electrophile will come, will attack on ortho and para position. Okay, now this is reaction with again Cl2 AlCl3। अगर याद हो मैंने बताया था कि ये क्या करता था, will generate Cl plus and AlCl4 minus। AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल एक्सेप्ट Cl plus, sorry Cl minus, and Cl plus is now behaving as electrophile, will attack on benzene ring. Why it will attack on benzene ring? Since benzene ring is having 3 pi bonds, that is 6 pi electrons, because of which electron cloud density is high on benzene ring, so it will attract positive charge. अब देखो पॉजिटिव चार्ज तो है बट जाएगा कहां पर, बोलो। इट विल बी ऑन आइदर ऑर्थो पर या तो फिर पैरा पर। सेम केस विथ Cl2 एंड FeCl3 और सिंपली Fe। Cl प्लस को क्या करेगा, छोड़ देगा, Cl माइनस को FeCl3 कैप्चर कर लेगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज मोर, दैट्स व्हाई प्लस चार्ज विल बी अट्रैक्टेड, ऐसा। आइदर ऑर्थो और पैरा, आइदर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा।
नोट कर लिया सबने? स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट, राइट डाउन स्टेटमेंट प्लीज फॉर बोर्ड एग्जाम। लिखो when chlorobenzene is reacting with when chlorobenzene is reacting with chlorobenzene is reacting with Cl2 in the presence of anhydrous Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3 then 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 1,2 dichloro 1,2 dichlorobenzene or 1,2 sorry or 1,4 dichlorobenzene is formed. ठीक है ना? उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो। Next statement, an important one. Reaction is following aromatic electrophilic substitution reaction. Okay. ठीक है ना? चलो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। न्यू स्टेटमेंट लिखो। लिखो पैरा क्लोरो पैरा क्लोरो पैरा क्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन is major product due to less repulsion. Para wala will be major product due to less repulsion. Okay. Para wala will be the major product. Same case if you are writing Br2 and Fe. So this is Br and Cl. कहीं पर भी लगाओ, पैरा दोनों ऑर्थो पोजीशन है। This one, write down fast. Write down fast.
So this is called as halogenation. Second, alkylation. Alkylation. ये सब सारे चैप्टर्स में बार बार यूज करूंगा. You will be familiar. तो when alkyl halide and AlCl3, देखो what will happen actually. This AlCl3 plus Cl CH3 तुमने लिया, तो this will generate CH3 plus and AlCl4 like before. Earlier reaction. So electrophile will attack on benzene ring. हो गया. Electrophile will attack on benzene ring. Now this is belonging to कैसा plus M group. अभी बताया था ना नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा था. ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. That's why CH3 यानी electrophile will attack on specifically ortho or para position. This will be major product because of less repulsion. Similar reaction, chlorine, fluorine, bromine, iodine, तुम कुछ भी ले लो. In the presence of anhydrous AlCl3, now electrophile generated will be CH2 CST at ortho position as well as para position. विरजा बोल रहे हैं previous slide दिखाने को. Now all are following ARSE. ARSE. जल्दी से नोट करो फिर प्रीवियस स्लाइड में दिखाता हूं. If you want to write the statement, please write. स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं. सबने नोट कर लिया. टेक्स्ट मी, मैसेज मी फास्ट. नोट कर लिया क्या? सर एक मिनट. भक्ति बोल रहे हैं यस. वेदांत बोल रहे हैं यस. देव बोल रहे हैं यस. ये सब में हम लोग बार बार यूज करेंगे रिएक्शंस. ओके. So write down the statement. लिखो when halobenzene is
when halobenzene is reacting with halobenzene is reacting with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 anhydrous AlCl3 anhydrous AlCl3, then it is forming orthoalkyl halobenzene. इन जनरल लिखवा रहा हूं, हेलो की जगह क्लोरो ब्रोमो कुछ भी लिख सकता था तुम. इट इज फॉर्मिंग ऑर्थो हेलोबेंजीन और पैरा हेलोबेंजीन and para product is major product. विरेजल प्रीवियस स्लाइड देखो तुम्हारे लिए स्पेशली. para product is major product due to less repulsion ठीक है ना. उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो रिएक्शन इज फॉलोइंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट वन, ये सब बोर्ड में तुमको आएगा. नाउ थर्ड वन इज नाइट्रेशन. थर्ड वन इज नाइट्रेशन ऑफ एराइल हैलाइड या हेलोबेंजीन. नाइट्रेशन का मतलब क्या हो रहा होगा, NO2 ग्रुप आ रहा होगा, है ना. तो हाउ NO2 group is coming? So this is chlorine, bromine, iodine, fluorine. This is belonging to plus M. मैं बार बार लिख रहा हूं. This must be remembered one. Ortho and para directing group. ये तुमको याद होना ही होना चाहिए, अदरवाइज तुम मेटा पे जोड़ोगे या पैरा पे ऑर्थो पर. ठीक है ना. नाउ नाइट्रेशन का मतलब है कि यू आर टेकिंग HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. ये कैसे ब्रेक होता है, OH minus and NO2 plus. This is behaving as nothing but electrophile.
nucleophile is not attacking on benzene ring. तो इलेक्ट्रोफाइल सिंपली अटैक ऑन बेंजीन रिंग, तो अब कहां पे अटैक करेगा? आइदर ऑर्थो आइदर पैरा। बेंजीन रिंग पे जो अटैच्ड ग्रुप है वो गाइडलाइन देंगे कि आने वाले ग्रुप को कहां पे जाना चाहिए। तो आइदर ऑर्थो और पैरा। पैरा वाला विल बी मेजर प्रोडक्ट। पैरा वाला will be major product. Again, this is following aromatic electrophilic substitution reaction. Important one. टेक्स्ट बुक में हमारे नहीं दिया है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट वी विल यूज। Yes, this is nitrating mixture. Yes, very good. This is called as nitrating mixture. श्रीनिवास, अपना वीडियो बंद करो, मैंने देख लिया तुम्हारे घर में पेंटिंग बहुत अच्छा है। This is also called as nitrating mixture. This is called as nitrating mixture. क्या क्या जनरेट किया? OH minus and NO2 plus. Electrophile will attack on benzene ring. Why? Benzene ring is having 6 pi electrons, due to which due to which due to which because of 6 pi electrons it will have high electron cloud density, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4? कंसंट्रेटेड सिस्टम है ना, तो वो जल्दी जनरेट करेगा। यू कैन टेक HNO3 ऑल्सो ओनली, इज ऑल्सो करेक्ट वन। वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। सेम रिएक्शन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर you are taking, or you are taking simply HNO3, डेफिनेटली ये तुमको हीट करना पड़ेगा। दिस इज अगेन जनरेटिंग सेम थिंग। तो इसके प्रेजेंस में NO2 फास्ट जनरेट होगा। So this is nitration. Measure is this one. Measure is this one. Measure is this one. Okay. मैं तुमको बिल्कुल मैकेनिज्म और कॉम्पिटिटिव बेस्ड सब मिक्स करके कर रहा हूं कि कहां से क्या जनरेट हो रहा है, इज द इंपॉर्टेंट वन। अदरवाइज अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ बॉक्स मेथड करना होता तो ऐसा कर लेते। ये देख, बॉक्स मेथड ऑफ HNO3,
H2O बाहर आ गया, NO2 जाके अटैच हो गया, बट क्या अटैक कर रहा है क्या नहीं रहा वो तुमको नहीं पता चलेगा तब। यहाँ पे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, अगर मैं ये सब चीजें लिख लिया कि NO2 is generated during the reaction, NO2 will attack on the this one, तुम्हारे पास एग्जामिनर हैप्पी हो जाएगा कि तुमको बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज है। ओके, so let us move for next one. Next heading is sulfonation. सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। Okay, what is the meaning of sulfonation? सल्फर का कोई ग्रुप आ रहा होगा। सर 1 मिनट आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? ये लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फ्री में है। यस, पैरा शुड बी मेजर प्रोडक्ट नंदिनी, इसीलिए मैंने वहां पे टिक लगाया है, जहां पे टिक लगाया है इज मेजर वन। इसका डेफिनेशन लिखना है, ऋतुजा बोल रहे हैं, लिखो जल्दी से अगर लिखना है तो। अनिकेत, बहुत ही अच्छा तुम्हारा घर पेंटिंग है, बंद करो मोबाइल का वीडियो। देख लिया मैंने, देख लिया। चलो लिखो, लिखो, लिखो व्हेन हेलोबेंजीन, नाइट्रेशन का लिखो, when halobenzene is reacting with, when halobenzene is reacting with, halobenzene is reacting with nitrating mixture, reacting with nitrating mixture, reacting with nitrating mixture, ब्रैकेट में लिखो HNO3 plus H2SO4, HNO3 plus H2SO4, then orthonitro, orthonitrohalobenzene, orthonitrohalobenzene, orthonitrohalobenzene or paranitrohalobenzene is formed. Paranitrohalobenzene is formed. Okay, and paranitro is major product. Paranitro is major product. Paranitro is major product. Come to next one. Sulfonation. You are taking chloro, bromo, fluoro, iodo, benzene. Now on a reaction with concentrated H2SO4, then now it is broken into OH minus and ऐसा। Obviously heat must be present, so this will be Br and SO3H. This is ortho position, and this is para position. Obviously para wala will be major product. So this is
ऑर्थो ब्रोमो सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो ब्रोमो सल्फोनिक एसिड। And बाजू वाला is para bromo. Sulfonic acid is having highest priority. Again, this reaction is following ARSE. ARSE. Aromatic electrophilic substitution reaction. Now write down the statement fast. लिखो when bromobenzene is reacting with when bromobenzene is reacting with bromobenzene is reacting with concentrated H2SO4 and on heating concentrated H2SO4 and on heating produces orthobromo बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिर्फ सल्फोनिक नहीं होगा भाई, ऑर्थोब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। O is ऑर्थोब्रोमो बेंजीन, ओके सॉरी, ऑर्थोब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड and parabromo benzene sulfonic acid and parabromo benzene sulfonic acid। लिख लो रिएक्शन इज फॉलोइंग ARSE, reaction is following ARSE। Now next one is acylation। ये जितने भी हेडिंग है सारे चैप्टर में फिर से ये मिलेंगे, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, acylation। ओके, नाउ व्हाट इज acylation? असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, असाइल ग्रुप ये है, दिस इज एसिटोइल क्लोराइड, कॉमन नेम एसिटोइल क्लोराइड, IUPAC नेमिंग इज इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, ओके। तो मैं आगे देखूंगा, हमेशा याद रखो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इज AlCl3, फिर से क्या करेगा भाई, AlCl4 माइनस
and it is generating ऐसा। चलो कोई कुछ नोट नहीं करेगा, इधर देखो। whenever you are having, this is called as carbonyl. aldehyde and ketonic group is called as carbonyl. उसके बाद अगर यहाँ कार्बन अटैच्ड है तो कॉल्ड एज प्योर कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बन नहीं बल्कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन अटैच है तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप, और यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अभी मुझे और ज्यादा समझ में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में जब एल्डिहाइड कीटोन आएगा। ये देखो, तो प्लस जनरेट हो गया, प्लस वाला विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग and definitely ortho and para position. तो para will be major product, para वाला will be major product, para वाला will be major product। पैरा वाला विल बी मेजर प्रोडक्ट। असाइल ग्रुप ऐड किया इसलिए असाइलिनियम, दिस इज कॉल्ड एज असाइलिनियम आयन। स्टेटमेंट लिखो, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये आता है डिफाइन करने को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसाइल क्लोराइड। लिखो, when bromobenzene when bromobenzene when bromobenzene is reacting with when bromobenzene is reacting with acetyl chloride in the presence of in the presence of in the presence of in the presence of acetyl chloride, sorry, in the presence of anhydrous AlCl3 anhydrous AlCl3, then it is forming then it is forming then it is forming orthobromo 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 orthobromophenyl orthobromophenyl acetone, sorry, ethanone orthobromophenyl ethanone और पैराब्रोमो पैराब्रोमोफिनाइल इथेनॉन। ठीक,
उसके आगे लिखो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, yes, benzene is acting as a side chain. This reaction is called as, this reaction is called as, रेड से देखो मैं लिख रहा हूं, this reaction is called as Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation, sorry K आ रहा है, Friedel-Crafts acylation, Friedel-Crafts acylation. यहाँ पे जाओ, ये क्या नाम होता था, जहां पे अल्काइलेशन था ये भी क्या था, Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation वहां पे, Friedel-Crafts acylation यहाँ पर. Friedel-Crafts acylation and reaction is following क्या, ARSE. कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ इसलिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. इंपॉर्टेंट बना, Friedel-Crafts acylation और alkylation सारे चैप्टर में आएगा. Friedel-Crafts acylation एंड alkylation, अल्कोहल में भी आएगा, फिनॉल में भी आएगा, एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, अमाइन में आएगा, ऑलरेडी एल्केन एल्कीन अल्काइन में आया है, आया होगा एराइल हैलाइड जब तूने पढ़ा होगा बेंजीन का. ठीक, सो दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर, दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर. तो कहने का मतलब है कि सारे रिएक्शन को मैं एक जगह पर समराइज कर सकता हूं. Cl2 in the presence of AlCl3 is called as halogenation. Then after nitration, HNO3 H2SO4, then after सिर्फ और सिर्फ H2SO4 sulfonation, then Friedel-Crafts alkylation, then Friedel-Crafts acylation. So this is Cl, ortho and para. For this one, Cl and bromo will be para. For this one, Cl and NO2. This is sulfonation. This is Friedel-Crafts acylation.
ठीक है ना? So these two reactions are called as halogenation. Now this reaction is when NO2 is added, called as nitration. This is called as sulfonation. This is called as Friedel-Crafts alkylation. Okay, and नीचे वाला is called as Friedel-Crafts acylation. ठीक है, and all are following ARSE, aromatic electrophilic substitution reaction, halogenation, nitration, sulfonation, alkylation, and acylation. So let us move to next one. 1 minute, sir. हाँ जल्दी जल्दी फास्ट. शर्वरी कुलकर्णी समझ में आ रहा है? मंजरी, नेहा शिंदे फर्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं. कम समझ में आ रहा होगा, बट दिस इज द पार्ट ऑफ 11th क्लास अराइल हैलाइड का रिएक्शन. Shall I proceed? क्योंकि ये आज हम लोग का लेक्चर फिनिश हो जाएगा. सोचने वाली बात है कि 15 लेक्चर लगे हैं फिनिश करने में. 15 लेक्चर लगे हैं फिनिश करने में. 1.5 घंटे 1.25 घंटे का लेक्चर. Next one is fitting reaction. Next one is fitting reaction. This is same as Wurtz reaction, but Wurtz reaction is for aliphatic. Fitting reaction is for aromatic. So when 2 moles of aromatic aldehyde is reacting with sodium in the presence of dry ether, just like Wurtz reaction. हो गया. अगर 2 मोल्स है ClCl को हटा करके, कुछ मत करो बेटा, ऐसा 2 मोल्स हो गया. इसका प्रोडक्ट बना करके दिखाओ. तुमको कभी भी 2 मोल्स लिखेगा नहीं, तुमको अपने से समझना है. ओके, बट मैं 2 मोल्स बना देता हूं.
बोलो। कुछ नहीं है भाई, मुझे तो CL से मतलब है ना। CL के लिए क्या कर, हटा दे वहां से। ऐसा मेरे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे NO2 लगा करके दिया है। अब तुम लोग बोलो। कुछ लेना देना नहीं रे बाबा। सोडियम एंड ड्राई ईथर प्रोडक्ट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। कुछ नहीं है, 2 बेंजीन लगा दो। तुमको तो CL के सामने को हटा करके जोड़ देना है। वुड्स रिएक्शन याद आया? 11th क्लास एज वेल एज एल्किल हैलाइड डिटेल्ड में मैंने कराया, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में। मैंने क्रॉस वुड्स रिएक्शन कराया, इंट्रामोलिक्यूलर कराया, फिर उसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कराया, जो किसी बुक में ना दिया है। बोलो यहाँ तक। अर्णव, सर अर्णव यहाँ पे सांगले, अर्णव नायर। सर यहाँ पे NO2 मतलब हाँ बोलो। NO2 क्यों जुड़ रहा है यहाँ पे, मतलब NO2 हाँ सर। लीव कर सकता है ना NO2 नहीं, Cl निकलेगा ना। सर, लेकिन N भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी निकल सकता है। नहीं नहीं, वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में हेलोजन होना चाहिए ना। फ्री रेडिकल बनाना है, एन एन निकलेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ सर। ओके। और बोलो किसी का प्रॉब्लम। अर्नव स्क्वायर, मंजरी, नेहा, सरवरी, भक्ति, सच्ची। स्टेटमेंट लिखना है क्या? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखना है क्या? हाँ यस, सब सर। लोग बोल रहे हैं स्टेटमेंट लिखना है। वेरी गुड, लिखो। हाँ सर। लिखो when 2 moles of aryl halide, when 2 moles of aryl halide, when 2 moles of aryl halide, when 2 moles of aryl halide is reacting with sodium in the presence of sodium in the presence of sodium in the presence of dry ether, dry ether। वेदांत ने हाथ उठाया है। dry ether, then it will form then it is forming biphenyl compound, then it is forming biphenyl compound, biphenyl compound। Okay, so next, and मेरे पास ऐसा आ गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग का मतलब क्या हो गया? वुड्स में एल्काइल एंड फिटिंग में अराइल, दोनों को ले लो। CH3Cl in the presence of dry ether
plus so this will form बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो जाएगा ऐसा. Okay. Suppose you are taking CH3, CH2, Cl, सोडियम ड्राई ईथर, या बाद में लिखो यहाँ पे लिखा सोडियम ड्राई ईथर, मीनिंग इज सेम. ड्राई ईथर तो क्या बना लेगा? बेंजीन रिंग. 2 Cl को हटा करके क्या लगा दो? 2 मोल्स ऑफ NaCl बना दिया. पूरा मैकेनिज्म पूरा मैंने डिटेल्ड में करवाया हुआ था इन वुड्स रिएक्शन. नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट. Write down statement fast. Write down statement fast. लिखो when alkyl halide is reacting with aryl halide in the presence of sodium and dry ether. Sodium and dry ether. Sodium and dry ether. Then it forms alkyl benzene. Then it forms alkyl benzene. Thick. And reaction is called as, or this is called as Woods fitting reaction. Okay. तो भाई अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों को डिसाइड करना है. नेक्स्ट लेक्चर डिसाइड करना है. मैत्रेय बोलो कब रखा जाए? हफ्ते में 3 डेज. हफ्ते में 3 डेज. Monday, Tuesday, Wednesday. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. जैसा बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Monday, Tuesday, Wednesday. सर मंडे ट्यूसडे उपाध्याय मैम के टाइमिंग के टाइम में ले सकते हैं आप. उनका टाइमिंग क्या है? 5:30 to 6:45. तो उसी टाइम पे उनका भी रहता है. उनकी उस दिन छुट्टी रहती है.
अच्छा, most of them are saying मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दोनों आ रहा है। श्रीनिधि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्यों? नेहा सिंधे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्यों? मंडे ट्यूसडे वेनेसडे क्यों नहीं? तन्वी भी बोल रही है। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे साइली मोरे। मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। भाई थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में, सॉरी मंडे ट्यूसडे में, मंडे टू वेनेसडे में किसको प्रॉब्लम है वो बोलो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बाई चॉइस नहीं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं, अगर किसी का क्लैश कर रहा है तो डिफरेंट इशू। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, नो प्रॉब्लम विथ मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, नो प्रॉब्लम विथ मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, टाइमिंग शुड बी सेम। Timing must be same one. Timing must be same, no problem, no problem. सर सकाली, सकाली नहीं रे बाबा, सकाली मतलब शाम सुबह ना। सर सुबह मत, सुबह नहीं हो सकता। सर सुबह नहीं प्लीज। हाँ सुबह नहीं है। हाँ हाँ, और चैप्टर पर कौन से चैप्टर पे टेस्ट लेना है मुझको? नेक्स्ट वाले पर। तो shall I take NEET level, NEET that is JEE level or CET mixed one, CET plus JEE mains plus NEET level for solution, or you may differ one, you may be differ one, you may be differing one. हाँ, विरजा बोल रहे हैं कि कब ले सकते हैं, तो डेफिनेटली मंडे ट्यूसडे वेनेसडे में लेक्चर रहेगा, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या संडे में चलेगा। अब बोलो, मतलब कल नहीं। सॉल्यूशंस का नीट लेवल ले लूं, नीट प्लस सीईटी लेवल, डायनेमिक्स ही ले लो आप। नीट एंड जेईई मेंस लेवल इज सेम। यस सर। विरजा बोल रहे हैं नेक्स्ट संडे को, तो नेक्स्ट संडे विल बी आई थिंक बेटर वन फॉर द प्रिपरेशंस आल्सो। ओके, उसके बाद मुझे थर्मो का भी लेना रहेगा। तो ठीक है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अभी भी बहुत सारे लोगों ने आई थिंक नियर अबाउट 45 लोगों ने सिर्फ उसका दिया है ऐप का, क्योंकि ये अभी मैं तुमको जो पेपर भेजा हूं घर से सॉल्व करने से कोई मीनिंग नहीं है वैसा। तुमको उसका पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा ऐप पे, उसका एक एक डिटेल्ड वर्जन का एनालिसिस मेरे पास है, किस टेस्ट में तुमने ज्यादा लिया कम लिया, रैंकिंग क्या है, इमीडिएटली सब आ जाएगा। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं कि 300 रुपए में कुछ नहीं होता है भाई। अब तुम लोगों को लगता है सर आप ही क्यों नहीं पे कर देते। विरजा उस 24 घंटे के बाद सॉल्यूशन वहां पे अपलोड किया गया था, ठीक है। फर्स्ट वाला जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, फर्स्ट वाला ऐसे ही देख जा रहा था, वहीं पर है। आफ्टर 24 आवर्स या मैं बता दिया करूंगा कि व्हेन इट विल बी अवेलेबल। ओके, व्हेन सॉल्यूशन विल बी अवेलेबल आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स इन डिटेल। फर्स्ट वाला मैं टेस्ट कर रहा था, टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है, कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। और सभी लोग एक बार डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करो, डायरेक्ट उस टाइम पे लॉगिन मत करो, तो वो तुम्हारे पास हमेशा के लिए रेडी रहेगा। और जब जैसे ही होगा यू विल गेट अ नोटिस, दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट इसलिए नोटिस नहीं आया था, नाउ यू विल गेट नोटिस
कि सरोज ट्यूटोरियल से कि दिस वन इज द टेस्ट एंड व्हाट इज द टाइम। ओके, उस पर क्लिक करना, टेस्ट विल स्टार्ट। तो दिस इज द प्रोसीजर। और 300 रुपीज में तुम लोग को लगा कि मैं क्यों नहीं पे कर सकता, प्रॉब्लम ये है कि मैं सभी का मैं पे करूंगा तो इट विल बी 70 स्टूडेंट ना, मोर देन 21,000 एंड 300 रुपीज इज नॉट बिग इशू। तो सब लोग ट्राई समझो। एंड ये हम लोगों को n नंबर ऑफ टेस्ट में बाद में 10-10 20-20 नंबर के 10-10 20 नंबर बोल दूं, 10 प्रॉब्लम्स 20 प्रॉब्लम, सपोज एनी टॉपिक इज हार्ड वन, उस पर 20 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस अपलोड कर दिया। ऐसे n नंबर ऑफ टेस्ट फॉर CET, n नंबर ऑफ टेस्ट फॉर नीट, जेई मेंस, ये सब हम लोग कर सकते हैं। ये तुमको बाद में इसका जो बेनिफिट है यू विल गेट। हाँ, अभी कोई टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट संडे को है। आई एम इंटीमेटिंग ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, जिन लोगों ने, प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं किया है 300 रुपीज, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ सरोज ट्यूटोरियल फॉर पेइंग 300 रुपीज, दैट इज फॉर योर बेनिफिशियल। ओके, और जिन्होंने अभी भी पे किया है बट दे आर नॉट गेटिंग लॉगिन एंड आईडी, फिर से मुझे प्लीज मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे फिर से इंटीमेट कर दो। मैं उन लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में मैं उनको फिर से दे करके लॉगिन आईडी अवेलेबल करा दूंगा। बट प्लीज नेक्स्ट संडे को टेस्ट रहेगा तो फिर से नेक्स्ट सैटरडे वगैरह को पे करके मत दो, डेट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लॉगिन आईडी क्रिएट करने में। ओके, सर चलो, थैंक यू। हाँ सर, बोलो, हाँ बोलो। कोई लिंक है क्या जिससे हम डेस्कटॉप पे ऐप एक्सेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। लास्ट टाइम सिर्फ ऐप का था, किस पर, प्ले स्टोर पे, बट दोज हु आर गिविंग टेस्ट ऑन लैपटॉप कंप्यूटर उस पर भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए कोई सेपरेट लिंक है? हाँ, उसके लिए सेपरेट लिंक है, मैं सब बता दूंगा। जीवन को मैंने दिया था, अभी मैं सबको दे दूंगा। ओके, ओके, यस। हाँ। इज देयर एनी अदर इशू? सायली? सर वो ऐप पे सॉल्यूशंस नहीं दिख रहे। हाँ, सॉल्यूशंस में अभी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपलोड किया होगा फिर से हटा दिया होगा। वो 24 आवर्स के लिए ही किया था, बट बाकी जब भी नेक्स्ट होगा तो डेफिनेटली वो डिटेल में होगा। सर ठीक है ना? मतलब वो जो मतलब सॉल्व टेस्ट पेपर्स का सपोज सर्च किया तो फिर वो दिखाता नहीं है कि मतलब ये सॉल्व किया है करके। तो हाँ, आता ही उन्होंने नहीं। क्या, मैंने क्या किया था कि जो भी पेपर था उसका टाइमिंग फिक्स रहता है कि ये पेपर का सॉल्यूशन कब अपलोड करना है, तो डेट विल बी ऑटोमेटिकली अपलोडेड, वो तुमको दिखने लग जाएगा। ओके, यस सर। अब इन फ्यूचर ये पूरा जस्ट अ टेस्ट था। एक टेस्ट मतलब एक कि मुझे देखना था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसको डोंट टेक इट सीरियसली, जिन्होंने दिया है जिन्होंने नहीं दिया है। ठीक, और बोलो किसका क्या है? वैष्णवी, तनया, प्रथमेश, रमा, ठीक है ना? चलो, now I am stopping the lecture here. Is there any doubt till now? नहीं है। Thank you. थैंक यू सर। Thank you so much, Didi. Thank you so much, Didi.